10 मिनट्स में हम कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक ठीक है है, मैडम। ताकि थोड़ा सा आपको उसकी टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके मैम। जी। Patient is 32 years old, GAVDA 5, para 2 with 2 miscarriages at 32 weeks, sure of date with diabetes mellitus with intrauterine growth retardation with previous normal vaginal deliveries, and last born child is 1 year old. On examination, BMI is 25 kg per meter square, and on abdominal examination, symphysiofundal height is 28 weeks, longitudinal like phallic presentation. Symphysiofundal height is 28. जी, symphysiofundal जी, height 28 weeks, okay. longitudinal like phallic presentation, fetal heart rate 136 per minute, estimated fetal weight 1 kg, and Liker is adequate, seems to be adequate. Okay. तो बस ये है आपकी समरी। Yes, ma'am. Okay. Now, for further evaluation, what are the important points in history you want to evaluate or you want to know? Ma'am, for evaluation, first of all, I will ask the patient about diabetes, when it was diagnosed and how it was diagnosed, and what she is taking for control of diabetes, and either she is taking her blood sugar levels or not, and on what medication diabetes is being controlled in pre-pregnancy and then in pregnancy. And after that, I will rule out other causes of causes and differential diagnosis of the diabetes. I will ask her about the recurrent urinary tract infection, skin infection, delayed wound healing, any carbuncles, furuncles, and vaginal discharge. And I will rule out the complications of the diabetes, including nausea, vomiting, blurring of vision, flank pain, and chest pain, and any numbness or tingling sensation. Then I will take history about the current pregnancy. Either pregnancy was spontaneous, either it was a booked pregnancy or not spontaneous or not, and either she took folic acid in first trimester. She took folic acid in first trimester, and either blood pressure and urine complete examination was done or not. And I will ask about her anamnese scan at 5th month, to rule out cardiac anomalies and any other anomalies. Then I will ask about the the control of diabetes in the current pregnancy, and the dose of dose of medication taking in that pregnancy. And I will ask about the growth. I will ask about these scans from the 28 weeks, if she had done done any scans in the current pregnancy. And she is perceiving normal fetal movement, and is abdominal girth is according to her body weight or not, according to her gestation or not. ठीक है, और And madam, and she Okay. either she knows about the hypoglycemic and the hyperglycemia and the hypoglycemia, and how to manage. Okay. And regarding the IUGR, I will rule out the causes of the IUGR, that is height and weight, height of the husband, and any medical anomalies, and endocrine anomalies, and other causes of the IUGR. Smoking, diet, smoking, caffeine, cocaine, diet or previous history, and previous preterm, previous IUD and stillbirth. ओके, और कोई पॉइंट आपका रह गया? इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे, अभी सिर्फ इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड। बस मैडम, और तो ओके। एनी एडिशनल पॉइंट्स यू वांट टू नो इन एग्जामिनेशन? मैडम, रिगार्डिंग इन एग्जामिनेशन। जी जी, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स जो आपने मुझे बताई, उसमें आपने मुझे बीएमआई का बताया है और सिम्फिजियोफंडल हाइट का बताया। यस मैम, बीएमआई मैडम, इसमें ब्लड प्रेशर, देन आई विल अबाउट आई एग्जामिनेशन, एंड ईसीजी evaluation,
I have fundoscopy evaluation from the eye specialist, and numbness and tingling sensation. वो तो सिम्टम्स होती हैं, वो एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स तो नहीं है। एनीवे, और तो नहीं इसमें कुछ रह गया। सो नाउ व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू वांट टू हैव? Madam, investigation, I HbA1c level, all baseline investigation, CBC, complete blood count, including hemoglobin, platelet count, and WBCs, and urine complete examination for microscopy for pus cells and biochemistry for sugar and proteins, and hepatitis B surface antigen, anti-HCV, and the anti-HCV COVID PCR and HIV. Then I may need HbA1c level to check about the control of the blood sugar levels, and I need renal function test for end organ evaluation, and I need fundoscopy and ECG with evaluation. और कोई चीज? And I need fetal kick count chart if available, and dating scan with date, and anomaly scan with date, and recent scan with date. And to rule out IUGR, I need two consecutive scans at 3 weeks apart to rule out IUGR, and I also need the Doppler ultrasound. बस ये हो गया आपको इन्वेस्टिगेशन। And blood pressure record, and sugar record, and treatment sheet of the patient. Okay, so what will be, after knowing all these informations, what will be your diagnosis in this case? अब इसमें जाहिर है आपने मुझे ये तो बता दिया कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन है, ये सारा कुछ है। तो overall, what is your diagnosis after this evaluation, and how you will manage her further? Madam, my patient is Gravida 5 para 2 with 2 miscarriages at 32 weeks. With diabetes mellitus, with complication of intrauterine growth retardation. आपको And इसकी एक मिनट, आपको इसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पता है? क्योंकि बेसिकली जो आप टेस्ट बता रहे हो इसमें एग्जामिनर आपको साथ साथ उसकी फाइंडिंग्स बताता जाएगा। But as you have seen the patient, so you must be knowing all these investigation reports as well. Yes, sir. Ma'am, so in that light, what is your diagnosis and how you will evaluate her further? Madam, I presume that you know all the reports of all these investigations which you have just asked me. Yes, ma'am, it was IUGR according to the recent scan, and scan done 1 month back. Biometry abdominal circumference was stuck to 28 weeks. 1 month back, then, after 1 month, it was again abdominal circumference was 28 weeks. And she was pregnant. She was sure of date, and corresponding to dates with the dating scan, and it was 32. So how you will manage her further? सिर्फ मुझे उसके principles of management बता दें। Ma'am, I will admit my patient. I will admit my patient. I will admit my patient, and then I will do counseling of the patient regarding diagnosis and counseling of the patient. जब आपने एक मुझे एक component of management बता दिया कि ये मैं counseling करूंगी patient की, तो counseling के साथ आप 2-3 important चीजें भी आप बता दें कि इसमें counseling में आपने क्या-क्या चीजें cover करनी है। Okay, ma'am. I will consult the patient regarding the diagnosis and fetal-maternal implications. As be brief. Okay. Fetal-maternal implication, I will. My aim is to prolong the pregnancy till term. If fetal-maternal conditions remain satisfactory, I will involve the multidisciplinary team, including the endocrinologist, and anesthetist, pediatrician, and I, as an obstetrician, will take care of the patient. I will optimize her health by controlling her blood sugar levels, and by doing principle. Okay, चलो complete कर लो, फिर इस पे बात करते हैं। I will optimize her health by controlling her blood sugar levels and monitoring, and maternal and fetal monitoring, and okay. What and else? I will
And I will, I will prolong the pregnancy till term if fetal condition remains satisfactory. And I will do, I will give her regarding diabetes, I will give her diet chart and tell her about exercise, 30-minute exercise per day. And I will do her blood lifestyle modification, and I will do her blood sugar levels in the ward, and with dietary advice. And I will, as per my patient is already on insulin, I will adjust the dose of the insulin according to the blood sugar levels. And regarding IUGR, I will do her Doppler ultrasound, fortnightly Doppler ultrasound. And if Doppler ultrasound remains normal and blood sugar levels remain in the normal limit, I will discuss breastfeeding, contraception, and mode of delivery at 36 weeks, and I will prolong the pregnancy till 37 weeks, as she is IUGR. And at 36 weeks, I will give steroid cover for fetal lung maturity, and I will wait for spontaneous onset of labor till 37 weeks. If my patient goes into spontaneous onset of into spontaneous labor, then I will monitor. Then I will admit. Then I will check blood sugar level 1 hourly during labor, and my aim is to keep blood sugar level between 4 to 7 millimole per liter during labor. During labor, and I will do vigilant fetal monitoring, CTG. Will do continuous CTG, or and I will do fetal hearts after every 15 minutes in first stage of the labor, and in second stage of the labor after every contractions. And then after delivery of the patient, after third stage of the labor, I will hand over the baby to the pediatrician, and will do blood sugar level of the mother, vitals of the mother, and will do blood sugar levels on 2 hourly basis. On 2 hourly basis, and I will half the dose of the, and I will start oral hypoglycemics. I will start oral hypoglycemics, and I will discharge the and do blood sugar levels, 2 blood sugar levels while the patient is admitted, and I will discharge the patient with advice of follow-up at 6 weeks and 13 weeks. Okay. और कुछ इसमें चीज रह गई आपकी बताने वाली? मैम इस पेशेंट की तो ग्रोथ ही रुकी हुई है, नहीं, अभी पहले लेट हर कंप्लीट, जो प्रेजेंट कर रहे हैं केस पहले उनको कंप्लीट कर लेने दें। मैडम जी, आपके कुछ और रह गया हिस्ट्री में आयजा? नो मैडम। You have finished with this case. So you took 11 minutes to complete your case. इसमें अभी कहीं पे कोई इंटरप्शन मेरी साइड से नहीं थी, एंड जो क्वेश्चंस मैंने किए उसके हिसाब से आप उसको आंसर करते रहे। लेकिन आप अगर खुद अपने आप को एनालाइज करो, सबसे पहले तो सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है आपकी अपनी, upon what you have presented and methodology of that presentation. इसमें what do you think are the flaws in this case presentation? आप अगर अपने आप को खुद एनालाइज करो तो इसमें केस प्रेजेंटेशन में क्या फ्लॉज हैं? मैडम इट वाज नॉट फ्लुएंट, और वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो रहा था। और सीक्वेंस क्यों डिस्टर्ब हो रहा था? आपके ख्याल में उसकी क्या वजह थी? मैडम बस वही, वो जैसे पहले बेसिकली अब इसमें चूंकि आपका जो नया मेथड है, मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करने की जरूरत है। वो इसलिए कि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और यही जो चीज बार बार मैं बताती हूँ, बल्कि सभी आपको बता रहे होते हैं कि इसको आपने एक फिक्स टाइम में कंप्लीट करना है। इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन का टाइम नहीं होता, बहुत लंबी कहानियों का टाइम नहीं होता। So when you have presented me with the case summary, basically जो case summary इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी आती है, और उसके बाद फिर लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। जो कुछ चीजें आपकी असेस की जाती हैं इन दीज एक्सटेंडेड टॉक्स, उसके बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक प्रिंसिपल में एक तो ये चीज असेस होती है कि कैंडिडेट इज एबल टू ड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम द हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी उसका बेसिकली पेशेंट के प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड देन फाइनली टू डिसाइड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अब बहुत मल्टीफोकल होती है,
मैनेजमेंट डजंट मीन ओनली कि आप उसको मेडिसिन क्या दे रहे हो और क्या नहीं दे रहे हो और आपने उसको हॉस्पिटल में रखना है या घर भेजना है, वो एक मेडिकल रिलेटेड वो सारी चीज होती है, बट इट्स अ वास्ट टॉपिक। जो मैनेजमेंट वाली चीज है वो वास्ट होती है, क्योंकि आपने एक इंडिविजुअल केस के हिसाब से उसका प्लान ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करना है। इसमें जो है वो हमेशा देखो इंडिविजुअलाइज्ड केयर यही होती है कि किसी अब यूजुअली सिनेरियो अमूमन नहीं होता इसका डायबिटीज का IUGR के साथ, सो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अब डायबिटीज के साथ IUGR क्यों हुआ, क्या इसमें कोई एसोसिएटेड हाइपरटेंशन थी या कोई और पैथोलॉजी है या इसमें और कोई कोमॉर्बिडिटी है विच हैज लेड टू दिस प्रॉब्लम। फिर आपने उसमें जो हिस्ट्री आपने ली, हिस्ट्री में जो बेसिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ही आपने बतानी होती है कि मैंने इसमें हिस्ट्री पे फोकस करना है कि ये इसकी रिकन्फर्मेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 32 वीक्स अगर जो दिया हुआ है, लेकिन रिकन्फर्मेशन आपने फिर भी जरूर करनी है, बिकॉज सिम्फिजियोफंडल हाइट इज 4 वीक्स लेस देन द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहली चीज मिस्टेकन डेट्स ही आ जाती है। तो रिकन्फर्मेशन के बाद फिर आपकी जो एक सबसे पहले स्टार्ट होती है आपकी करंट प्रेगनेंसी से। करंट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं रहा, कोई वेजाइनल ब्लीडिंग, लीकिंग, कुछ इस तरह की हिस्ट्री तो नहीं रही, ये सब चीजें आपने, कोई इन्फेक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। सो एज टू नो द कॉज ऑफ दैट ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस जो अपेरेंटली आपको लग रहा है, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज आप कह सकते हो, तो उसकी वजह जानने के लिए सो I will rule out the causes of IUGR by asking ये this 1 2 3 4 5 points, बस end of discussion। उसके बाद फिर करंट प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड एंड नाउ शी इज इन एज इन थर्ड ट्राइमेस्टर, तो तब से लेके अब तक कोई ट्रीटमेंट इसने क्या ली, एज शी इज अ नॉन केस ऑफ डायबिटीज, सो शी मस्ट बी ऑन सम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू यू योर पेशेंट वाज हैविंग इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी वो कब से ले रही है, क्या प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुई या वो प्री कंसेप्शन पीरियड से उसकी थी, whether the dose was increased or not, and whether the control has been achieved so far or not, whether she has been booked with some doctor or not, and what about the blood sugar levels control and monitoring, is she doing it all at home or has she been visiting some doctor on regular basis। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें इसमें बताने की जरूरत पड़ेगी। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड के कोई एनोमली, क्योंकि सेकंड पॉसिबिलिटी वुड बी सम एनोमलीज इन द बेबी, जिसकी जो है प्रेवलेंस ज्यादा हो जाती है इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, क्योंकि हमें अभी तक जो डायबिटीज का कंट्रोल है वो हमें नहीं पता, नीदर बाय हिस्ट्री नॉर बाय द रिपोर्ट्स, क्योंकि रिपोर्ट्स हमें आपने नहीं बताई कि वो क्या क्या है। अब इसमें जो कंजेंटल एनोमलीज हैं वो भी, उसमें एनोमली स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एटलीस्ट जो इसका अभी का स्कैन है उस पर कुछ शो हुआ या ना हुआ वो आप इन्वेस्टिगेशन के साथ आप बताओगे। फिर ये सारा कुछ बता के अभी नाउ व्हाट आर हर करंट सिम्टम्स विद विच शी हैज प्रेजेंटेड, क्योंकि अब अगर ये आई है और क्या इंसिडेंटल डायग्नोसिस था IUGR का और हैज शी प्रेजेंटेड विद सम सिम्टम्स, तो वो सिम्टम्स उसके क्या हैं वो आप, you will like to know the symptoms and you will ask from the examiner, और एग्जामिनर आपको बताएगा कि हाँ ये सिम्टम्स थे या नहीं थे। और उसके बाद फिर जब आप इसमें आते हो तो फिर आप प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का एक लफ्ज बस बोल दो कि प्रीवियसली इसके कोई IUGR था या नहीं था, या कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल पीरियड में कोई कॉम्प्लिकेशन थी या नहीं थी, और लाइव हेल्दी बेबी है या नहीं है, ये सारा कुछ आपने जस्ट एक सेंटेंस में आप कंप्लीट करोगे। और फिर उसमें फैमिली, इसमें सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री, बस यहाँ तक आपने इसको पूछ लेना होगा। देन यू कम टू द एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। एग्जामिनेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ऑलरेडी समरी में बता दी गई हुई है, बट स्टिल BMI भी आपको इसका पता है कि शी हैज एन एवरेज BMI जो एक आइडियल बॉडी वेट होता है, लेकिन इसके अलावा उसका ब्लड प्रेशर लेवल्स क्या हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो आपने उसको पूछनी होगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें आपने बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, और बेसलाइन में जो वायरल मार्कर्स हैं, वायरल मार्कर्स में तीनों चीजें आ जाती हैं, HIV BC स्क्रीनिंग, वो सारी चीजें, CBC कंप्लीट यूरिन एनालिसिस, HbA1c,
और फंडोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन में कभी नहीं आती, वो उसके एग्जामिनेशन पे बेसिकली आ जाती है। जहाँ पे एग्जामिनेशन की बात है वहां पे आपको फंडोस्कोपी का बोलना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन में वो चीज नहीं आती। फिर उसके बाद जो RFTs वगैरह हैं दैट आई एग्री विद, लेकिन इसमें जो इसकी नॉन डायबिटिक है, अब नॉन डायबिटिक का हमें आपने ड्यूरेशन नहीं बताई कि कब से है, तो नॉन डायबिटिक्स में आपने थायराइड फंक्शन जरूरी करवाने होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज एसोसिएशन। ऑटो इम्यून अगर जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनके क्लोज लिंक होता है विद द टाइप 2 डायबिटीज, इवन समटाइम्स इन केसेस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज एज वेल। तो हर डायबिटिक केस में ये जरूर करवाया करें। फिर उसके बाद उसका डेटिंग स्कैन ठीक है, उसका एनोमली स्कैन ठीक है, एंड रीसेंट स्कैन, जिससे आपको पता चलेगा कि इसकी डिस्क्रिपेंसी ऑफ ग्रोथ जो है वो कहाँ से शुरू हुई इसकी। और उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के साथ, तो मैनेजमेंट ऑलवेज स्टार्ट विद वेदर यू वांट टू, उसमें काउंसलिंग से, क्योंकि इवन अगर आपने पेशेंट को एडमिट भी करना है, आप काउंसलिंग किए बगैर उसको ये तो नहीं कहते कि जाओ जाके दाखिल हो जाओ हमेशा। और काउंसलिंग के कंपोनेंट्स में आपने एम ऑफ मैनेजमेंट, इसका जस्ट एक कंपोनेंट है। सबसे पहले काउंसलिंग में आप ये बताते हो कि मरीज की सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन द, ये आपने सिर्फ बोलना है, उसकी पूरी डिटेल नहीं बतानी कि आई विल काउंसल द पेशेंट एज रिगार्ड टू हर डायग्नोसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्रोइंग फीटस एंड हाउ दैट डिजीज कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रेगनेंसी इटसेल्फ, and what is the need for her admission and what is the onward management plan in this case। ये वो सारी चीजें हैं जिसमें मरीज का जानना सब चीजों का बहुत जरूरी है। Until and unless she knows the severity of situation, she cannot comply to all your instructions। जो आप उसको बताओगे कि खाने में ये खाना है, एक्सरसाइज इतनी करनी है, दवाई ऐसे लेनी है या नहीं लेनी, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, even if there is no need to admit her, फिर भी उस सूरत में भी आप काउंसलिंग किए बगैर नहीं आप कर सकते। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू बी असेस्ड इन योर टॉक्स स्टेशन, कि आपने पेशेंट के साथ बात कैसे की और उसको क्या बताया। अब बताने में, अब ये ऐसा, ये सिर्फ आपका काउंसलिंग का स्टेशन ही तो नहीं है, इसमें आपने काउंसलिंग इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ योर मैनेजमेंट। और काउंसलिंग के आगे से जो 3-4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, you have just to narrate it in just one sentence। उसमें पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, just to show the examiner that you are well aware of the things के जो आपने पेशेंट को बताने की जरूरत है। उसके बाद फिर एज रिगार्ड टू द एम्स ऑफ मैनेजमेंट, वो आप बता सकते हो कि इसमें मेरा एम ये है कि आफ्टर ऑप्टिमाइज, फर्स्ट थिंग इज टू ऑप्टिमाइज द ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि it has a strong impact on the growing fetus and according to the cause of IUGR। अब IUGR की जरूरी नहीं कि causes आपको पता चल ही जाए, अगरचे आपने अल्ट्रासाउंड पे सारी चीजें देखनी है जिसमें सारा डॉपलर फ्लो स्टडीज और ये सब चीजें आ जाएंगी, बिकॉज दिस इज एन बेसिकली एन अनकॉमन सिनेरियो कि जिसमें डायबिटीज के साथ IUGR हो गया, तो कोमॉर्बिडिटीज को डेफिनेटली इसमें एवेलुएट करना पड़ेगा, तो वो आपने उसको देखना है। फिर उसके बाद देन यू कम टू द स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ब्लड शुगर लेवल, जिसमें डाइट चार्ट एंड एज हर BMI इज ओके, तो आपका डाइट चार्ट जो है वो बेसिकली विल कंप्राइज ऑफ 3 meals and 3 snacks एंड कीपिंग द कैलोरीज लेवल जो आपका एक नॉर्मल होता है, इसमें आपने तकरीबन 2500 से लेकर 3500 किलो कैलोरी पर 24 आवर्स होता है, और इसमें जो है वो आपने उस तक रिस्ट्रिक्ट करना है विद मोर इंक्रीज इन द कार्बोहाइड्रेट्स एज कंपेयर टू द फैट एंड वो। उसमें आप ये भी बता सकते हो कि 40% कार्बोहाइड्रेट है, 30% प्रोटीन है और 30% फैट है, बस इतना सा, ये काफी है डाइट कंट्रोल में। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज विल इन्वॉल्व 30 minutes वॉक इन मॉर्निंग एंड इवनिंग 1 hour आफ्टर द मील्स, तो सिर्फ इतना सा बता देना काफी है। फिर उसके बाद एज रिगार्ड टू द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, एज शी इज ऑलरेडी ऑन इंसुलिन थेरेपी, सो आई विल रीअसेस द अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर लेवल्स। जो ब्लड शुगर लेवल्स का आपका टारगेट ये होगा कि कम से कम आपने एज लॉन्ग एज शी इज एडमिटेड इन द, क्योंकि आपने इसका एडमिशन डिसाइड ही इस पे करना है कि कंट्रोल है या अनकंट्रोल लेवल है। कंट्रोल पे तो आप यू विल कंटिन्यू विद द सेम डोज विद द सेम रिजीम, बट सपोज द ब्लड शुगर लेवल्स आर नॉट कंट्रोल्ड,
तो उस सूरत में फिर आपने उसको एडमिट करके उसके ब्लड शुगर लेवल्स फ्रीक्वेंटली जो हम 6 लेवल्स करवाते हैं वो करवा के, तो फिर उसके हिसाब से आपने इसको टाइट्रेट करना होगा इंसुलिन को। और कौन से लेवल इंसुलिन के बढ़ाने हैं, बेजल है या इसमें बोलस है, वो आप डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर ब्लड शुगर लेवल्स डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपने ये पूरी इसमें भी कहानी बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये पोस्ट प्रेंडियल होंगे तो मैं ये करूंगी, फास्टिंग होगा तो ये करूंगी, बस सिंपल इतना, बेजल और बोलस को अकॉर्डिंग टू द टिपिकल ब्लड शुगर लेवल्स विच आर नॉट कंट्रोल्ड। फिर उसके बाद आपने once the control has been achieved, then she can be discharged with the home advice to continue with the modified regime, और उसके बाद to keep a record of blood sugar levels at home। और वो जो है वो होम मॉनिटरिंग कैसे होगी, होम मॉनिटरिंग विल कंसिस्ट ऑफ 2 levels a day जो रोटेट करेगा विद द डिफरेंट मील्स टाइमिंग। फिर उसके बाद आपका जो ऑनवर्ड प्लान होगा, आपने कंटिन्यू कैसे करना है इसको, फ्रीक्वेंट इसकी विजिट्स होंगी 2 वीकली नाउ एट दिस टाइम आफ्टर अचीविंग द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल। बट सपोज if you find anything suspicious on basic ultrasound which you have performed just now after admission या at the time of her OPD visit, उसके हिसाब से सॉरी डिसाइड होगा फर्स्ट केस के डॉपलर फ्लो में कोई प्रॉब्लम है तो एक तो आप मरीज को घर नहीं भेजोगे, या और दूसरी चीज ये कि अगर फर्स्ट किया पेशेंट एक पढ़ा लिखा कॉम्प्लाइंट पेशेंट है तो घर भेज भी सकते हो, बट डेफिनेटली शी विल हैव मोर फ्रीक्वेंट विजिट्स नाउ, नॉट एट 2 वीकली। और उस सूरत में फिर इसका वीकली विजिट होगा एंड एट एवरी विजिट्स यू विल रिपीट एन अल्ट्रासाउंड, जिसमें आपने ग्रोथ स्कैन, अगर से वीकली अल्ट्रासाउंड पे तो नहीं इस तरह से होता है, लेकिन एटलीस्ट यू विल नो द डॉपलर फ्लो स्टडीज। तो इसलिए क्योंकि इसमें अगर हम इसकी डेट को एज इट इज एक्सेप्ट कर लें कि ये वाकई 32 वीक्स पे है, और अमूमन जो सिनेरियो में चीज दी होती है वो फाइनली होती है, तो दिस इज स्वेयर आईयूजीआर, क्योंकि 4 वीक्स की डिस्क्रिपेंसी है इसमें, मतलब मॉडरेट टू स्वेयर वाली कैटेगरी में ये आ जाएगा। तो इस वजह से ये probably I think she will need admission and she will need more frequent vigilant monitoring as regard to the fetal well-being as well as the fetal growth, क्योंकि इसमें फिर डॉपलर फ्लो स्टडीज फिर सिर्फ वीकली नहीं, फिर बाद दफा इसको अल्टरनेट डे पे भी करवाना पड़ता है, एंड इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद द डायस्टोलिक फ्लो तो इवन ऑन डेली बेसिस। तो इस वजह से ये फिर आपने स्पेसिफाई करना है कि आपको जो फाइंडिंग एग्जामिनर बताएगा कि ये डॉपलर फ्लो इसका ये था और इसका जो बायोमेट्री है वो ये है, इसका AFI इतना है, ये सब चीजें उसके हिसाब से फिर आपने इसको स्टेटमेंट को मॉडिफाई करना होगा, बट अगेन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। फिर उसके बाद जब आपने ये सारा कुछ बता दिया तो उसमें आपने प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग कितना करना है, दैट विल अगेन डिपेंड अपॉन द बेसिक अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स या बाकी जो स्टडीज हैं जो कि आपको एग्जामिनर ने बताई होंगी। अब इसमें स्टीरॉयड कवर इसको 36 वीक्स तक ना लगाओ, इसको अभी इसको स्टीरॉयड कवर आप अभी दे दो, बिकॉज ऑफ द मॉडरेट IUGR जो इस पेशेंट में है, and maybe she needs an early intervention, though it will be a difficult decision in view of her underlying medical disorder जो diabetes है, but still in order to save the baby sometimes we have to take the difficult decisions like delivering this baby, growth restricted baby। तो इस वजह से फिर इसको हमें अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड यू विल गिव स्टीरॉयड कवर नाउ एट दिस टाइम, नॉट एट 36 वीक्स। फिर उसके बाद सपोज एवरीथिंग इज ओके एंड द फीटल, अब दूसरे सिनेरियो पे अगर फीटल ग्रोथ इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल पेस और उसमें जो है वो सब कुछ ठीक चल रहा है, डॉपलर फ्लो भी ठीक है, AFI भी ठीक है, तो उस सूरत में फिर आप इसको अलाउ करोगे टू प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी, एंड इन दैट केस फिर भी आपने इसको हर हाल में फिर भी आप इसको 38 वीक्स पे डिलीवरी का सोचोगे, because she is on insulin and as well as she is having growth restricted fetus, क्योंकि थोड़ा सा यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी का एलिमेंट हम उसमें से बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल डॉपलर फ्लो। अब इसमें इंट्रापार्टम मैनेजमेंट की इतनी लंबी कहानी बताने की जरूरत नहीं होती, as she has previous to normal vaginal deliveries, तो आपका एम इसमें नॉर्मल vaginal डिलीवरी ही होना चाहिए।
अनलेस के कोई फीटल इंडिकेशन ऐसी हो या कोई ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन अदरवाइज हो. So in absence of any fetal compromise, in absence of any other obstetric indication for section, you would go for the normal vaginal delivery. If she doesn't go into spontaneous onset of labor by 38 weeks, then you would induce the labor. अब intrapartum जो है वो आपका our target to be achieved as regard to the blood sugar control level is this. आपने सिर्फ उसकी रीडिंग बता देंगे कि 4 to 7 millimoles जो है उसका आपका टारगेट होगा जिसमें आपने उसको रखना है. बस इतना सा भी बता देना काफी है. विद मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड शुगर लेवल्स एट 1 to 2 आवरली इंटरवल्स. और इसके साथ साथ आप कंटिन्यूअस सीटीजी पूरी लेबर में तो नहीं उसको कंटिन्यूअस सीटीजी करोगे. अगर 8 घंटे की तो 8 घंटे का कंटिन्यूअस सीटीजी आप लगा सकते हो. सो इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन इज एज गुड एज कम से कम जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन वो एज गुड एज कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग वो होती है. तो इस वजह से आप उसकी स्टेजेस ऑफ लेबर के हिसाब से इसकी फीटल मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी बताओगे. बट एज द फीटस इज ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड, अगर हम इसको ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हमने लेबल कर दिए तो फिर उस सूरत में इसकी फीटल मॉनिटरिंग हम नॉर्मली तो हाफ आवर के बाद लेते हैं, लेकिन इस केस में फिर आफ्टर एवरी 15 मिनट्स होगा. और फिर उसके बाद जो है वो वंस द बेबी हैज बीन डिलीवर्ड तो उसमें फिर उसका पोस्टपार्टम ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द इंसुलिन बट इन रिड्यूस्ड डोसेस बिकॉज द इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीजेस. बस इतना सा काफी है. एंड लेटर ऑन शी कैन बी स्विच्ड ऑन टू द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक. लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या ये इंसुलिन उसने हमेशा ये इंसुलिन डिपेंडेंट तो नहीं है. ओरल हाइपोग्लाइसेमिक आप तब बोलोगे जब उसने सिर्फ इंसुलिन प्रेगनेंसी के दौरान में ली और ओरल इससे पहले ले रही थी, तभी हम उसको स्विच ऑन कर सकते हैं. तो ये फिर उसमें ये है वो इस यहाँ पे आके जो उसमें एडवाइस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज के इसमें उसने जो उसका फॉलोअप रेगुलर फॉलोअप एज रिगार्ड टू द ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटरिंग वो उसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी ये डायबिटिक है ही है. So she will continue her follow-up visits. एक 6 weeks की तो obstetrician के साथ करेगी. Later on she can continue it with her own physician. और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का लफ्ज भी जो मैंने इसमें ओमिट कर दिया, ये काउंसलिंग के बाद आप मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का भी ये लफ्ज जरूर बोलोगे. अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये तो आपने एक सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली, इस पे आपने कंक्लूजन ड्रॉ की और आपने अपनी मैनेजमेंट का प्लान डिसाइड किया. दिस इज बेसिकली आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके उससे कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करते हो. दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्किल्स टू बी असेस्ड एट दीज स्टेशंस. काउंसलिंग स्किल्स आर द अदर थिंग्स टू बी असेस्ड. अब इसमें जो आपने एक और बहुत जरूरी चीज जो इसका एक कंपोनेंट होता है ये एक्सटेंडेड टॉक्स का, वो ये होता है कि आपने पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए. जैसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि व्हाट आर द पेशेंट सेफ्टी इश्यूज इन दिस केस, आपके ख्याल में डॉक्टर आयजा, आपके ख्याल में इसमें पेशेंट सेफ्टी इश्यूज क्या होते हैं? पेशेंट सेफ्टी ये होती है कि कोई भी ऐसी चीज हम हर उस चीज को प्रिवेंट करें जिससे मरीज को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचने का खदशा हो. ये पेशेंट सेफ्टी वाली चीजों में आ जाता है. तो इसमें क्या, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम पेशेंट सेफ्टी पे बात कर सकते हैं. तो इसमें पेशेंट सेफ्टी इश्यूज क्या होंगे, बिकॉज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इस तरह के स्टेशंस पे. और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर केस में आपके हिसाब से पेशेंट सेफ्टी इश्यूज क्या हैं, या पेशेंट सेफ्टी पॉइंट्स क्या हैं इसमें? मैडम इसमें एक तो ये कि सबसे पहले डाइट उसकी अकॉर्डिंग टू द डाइट प्लान हो, उसके मील डाइट अकॉर्डिंग टू द डाइट प्लान हो. इसके अलावा उसमें पेशेंट में इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो, कोई कैंडिडियासिस, वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह ना हो, क्लीनली हैबिट्स, उसे मैं एडवाइस करूंगी. इसके अलावा इसमें फंडोस्कोपी उसकी मैं फंडोस्कोपी भी उसकी 28 वीक्स पे कर लूंगी. और रिगार्डिंग देखो इसमें एक तो जो मैंने चीज बताई है ना कि कोई भी ऐसी चीज जिससे मरीज को और उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचे. अब इसमें डेफिनेटली वो चीजें भी आती हैं जिससे डायबिटीज का कंट्रोल पोर हो जाए, यानी या हाइपो हो जाए. पोर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हाइपर ही हो, हाइपो में भी जा सकती है, वो भी एक उसकी कॉम्प्लिकेशन ही है.
और हाइपो ज्यादा खतरनाक होता है बच्चे के लिए। तो एक तो उसका एडिक्वेट कंट्रोल इसमें बहुत जरूरी होगा, और एडिक्वेट कंट्रोल के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? डाइट, उसका उसकी ये समझना कि डाइट को एडहेयर करना कितना जरूरी है, वॉक कितना, ये आपने एम्फेसाइज करना है, उसको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। एंड सेकेंडली द एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ द इंसुलिन डोजेज, उसका स्टोरेज क्या है, घर जाके वो मरीज यूनिट कैलकुलेट करती है तो वो कैसे करती है? अगर वो 2 किस्म की ड्रग्स पे है, जैसे एनपीएच या प्लेन रेगुलर इंसुलिन पे है, तो वो उनको कैसे उसने मिक्स करना है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, वो कहाँ पे लगाती है और किस तरीके से लगाती है, उसकी पूरी मेथोडोलॉजी उसको समझानी है। इंसुलिन इंजेक्शन कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, ये वो सब चीजें हैं जो पेशेंट की सेफ्टी में आएंगी, क्योंकि इनमें किसी में भी गड़बड़ हो जाए तो उसका कंट्रोल खत्म, उसका कंट्रोल ऊपर नीचे हो सकता है। हाइपर में भी पेशेंट जा सकती है, हाइपर में भी जा सकती है। The second thing is how to monitor the blood sugar levels, whether she is expert to monitor it. अब होम मॉनिटरिंग डिवाइसेस तो डेफिनेटली मिलती हैं, ग्लूकोमीटर जो है पेशेंट का, उसके बारे में भी कितना को वो ट्रेन है उसके बारे में वो भी हमें बताना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें हमने उसको सिखा के भेजनी होती हैं। और इसके अलावा टू ट्रेन हर, टू एजुकेट हर, एजुकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एजुकेशन के, अगर उसका ब्लड शुगर लेवल इतना हो गया तो उसने ये करना है, यानी अगर हाइपो में वो चली जाती है, अगर उसका 65 से नीचे चला जाता है तो उसने इमीडिएटली क्या करना है, दीज आर द बेसिकली द रेस्क्यू थेरेपीज, इमीडिएट थेरेपीज। उसको हर वक्त अपने पास कुछ ना कुछ ऐसी सिंपल शुगर कंटेनिंग चीजें जो है वो रखनी चाहिए, ताकि इमीडिएटली उससे उसको स्वीर हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए, जिससे पेशेंट कोमा में भी डेफिनेटली जा सकता है। तो ये वो चीज है जो कि उसको आपने उसको सिखा के बेचना है। और दूसरी चीज ये कि अगर फर्ज किया उसने क्या सिम्टम्स होंगे तो उसने फौरन हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है, यानी उसने ये सारी चीजें आप उसको पेशेंट को बताओगे। ये अगरचे आपने काउंसलिंग में ये चीजें कवर कर दी, बट डेफिनेटली यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द पॉइंट्स व्हिच कैन hamper whether which can endanger the health and the life of the patient and of the fetus of course. तो इसमें ये भी आपने उसको बताना है कि what should be the target levels to be achieved, यानी उसमें फास्टिंग लेवल्स कितने होने चाहिए, उसमें उसको एक रेंज बता दो, क्योंकि एग्जैक्टली 95 या 92 पे तो नहीं वो हो सकती ऑल द टाइम, लेकिन उसमें सेफ रेंज ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल एंड सेफ रेंज ऑफ पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स वो उसको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि अगर फर्ज किया पेशेंट जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे पेशेंट्स होते हैं उनको तो ये भी पता होता है कि इतने ब्लड शुगर लेवल्स हो गए तो हमने इंसुलिन इतनी बढ़ानी है, बट यू कैन नॉट टेक रिस्क इन एन जो एक अनएजुकेटेड बंदा होता है, और अनएजुकेटेड बंदे के साथ कम से कम किसी पढ़े लिखे अटेंडेंट को आप जरूर उसकी सारी चीजें समझा देते हो। तो इसलिए आपने सिर्फ उसको ये बताना है कि जब आपने घर पे मॉनिटरिंग करनी है तो ये आपके फास्टिंग लेवल होने चाहिए, ये आपके पोस्ट प्रेंडियल लेवल होने चाहिए, इस रेंज में फास्टिंग, इस रेंज में पोस्ट प्रेंडियल। तो अगर ये पोस्ट प्रेंडियल जो है वो इससे नीचे जाए या फास्टिंग इससे नीचे जाए तो आपने अपनी इंसुलिन की डोज को इतने यूनिट कम कर देना है एटलीस्ट। अब अगर बहुत ज्यादा इतने अगर फर्ज किया 10 ग्राम्स अगर फर्ज किया नीचे हो गई तो आप इसको 2 यूनिट्स 1 to 2 यूनिट्स आप कम कर दो। ये आपने मरीज को बता के भेजना है, ताकि ये ना हो कि वो अगर फर्ज किया ये 95 का आपने उसको टारगेट बताया हुआ है और वो चली जाती है 70-75 पे, तो वो फिर भी उतनी ही इंसुलिन लगाती रहे, डेफिनेटली इट विल लीड टू मोर हाइपोग्लाइसीमिया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी कंसिडर्ड। एंड नाउ we come to the other points which can be the complications of these diabetes, जैसे आपने UTI का बताया, vaginal discharges का बताया, तो ये भी आप पेशेंट को बताओगे कि ये कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाए तो इसका मतलब है आपकी ब्लड शुगर लेवल में कुछ मसला है या इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनमें डायबिटीज होती है। तो इसलिए आपने इनको अवॉइड करने के लिए, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के लिए हाइड्रेशन लेवल अपना रखना बेहतर रखना जरूरी है। और उस केस में अगर वो सिम्टम्स फील करती है देन शी हैज टू गो फॉर कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन एंड व्हाट शी हैज टू डू एट दैट टाइम। फिर उसके बाद आपने डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का जरूर मरीज को बताना है।
डायबिटिक कीटोएसिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो आपने जरूर बताने होते हैं। एक तो पेशेंट का जब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो वो वैसे ही आपने उसको कहना है कि वो फौरन रिपोर्ट करे हॉस्पिटल। बट सपोज शी लिव्स एट अ फार अवे डिस्टेंस एंड शी डजंट फील कंफर्टेबल टू कम एट राइट टाइम, या वो कहती है कि आज की बजाय मैं कल चली जाती हूँ, तो उस सूरत में आपने उसको सारे सिम्टम्स बताने हैं कि ये होगा तो इसका मतलब है कि सिचुएशन ज्यादा खराब हो रही है। उस सूरत में फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी होता है। तो डायबिटिक कीटोएसिस के इश्यूज सारे बताने उसको जरूरी होते हैं। इसके अलावा पेशेंट सेफ्टी की चीजों में बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट आ जाती है। वो आइडेंटिफिकेशन इस टाइम पे तो इसलिए कि पेशेंट आपके सामने है एंड यू नो द पेशेंट, या कोई रोल प्लेयर आपके सामने होगा, तो इस वजह से वो इतना इम्पोर्टेंट वो। लेकिन आप अगर मुंह से एक लफ्ज बोल दो, क्योंकि जहां पे भी सेफ्टी होती है, या जैसे WHO सेफ्टी चेक लिस्ट होती है, ये तो हर जगह पे एप्लीकेबल है, सिर्फ थिएटर्स में ही नहीं, ये हर जगह पे एप्लीकेबल होती है, इन वार्ड्स, इन योर OPDs, हर जगह पे। क्योंकि बात दफा एक ही नाम के पेशेंट्स होते हैं, आप जब रिकॉर्ड उसका एंटर करते हो इधर इन योर रजिस्टर्स, और अब तो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड का जमाना है, तो कंप्यूटर्स पे भी जब आप करते हो तो इवन बार दफा हस्बैंड्स के भी नाम एक जैसे हो सकते हैं। सो मेडिकल रिकॉर्ड नंबर इज वेरी एसेंशियल। मेडिकल रिकॉर्ड नंबर एक स्पेसिफिक जो होता है वो एक मार्कर हो जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट, उसका वो रिकॉर्ड वहां पे मेंटेन होता है। सो पेशेंट सेफ्टी में एक उसका पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये पेशेंट जो आया हमारे पास ये सिर्फ जस्ट फॉर वन टाइम नहीं आया, ये किसी भी हॉस्पिटल में आया या किसी भी इमरजेंसी में आया, वो फॉर एवर उसका रिकॉर्ड पे एंट्री हो जाती है। तो इसके अलावा फिर कोई ड्रग एलर्जीज तो नहीं है पेशेंट से, हम हमेशा पूछते हैं। ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट जब आता है हमारे पास, तो ऑब्स्टेट्रिक हो या गायनी का हो, तो एज अ रूटीन आप सबको भी पूछना चाहिए कि किसी ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि बाद दफा पेशेंट इसको बताना जरूरी नहीं समझता, या उसके नजदीक ये इतनी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने हमेशा पेशेंट से एक सवाल पूछना है कि कभी किसी ड्रग से एलर्जी हुई हो, सो दैट यू डोंट गिव इट। आपने जब अपनी बहुत सारी बाद दफा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में बहुत सारी मेडिसिन आ जाती हैं, इट्स नॉट ओनली अ मैटर ऑफ इंसुलिन और मेटफॉर्मिन इन डायबिटिक पेशेंट्स, मेनी अदर थिंग्स कैन बी रिक्वायर्ड, जैसे UTI अगर हो गया, कोई एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस सूरत में फिर ड्रग एलर्जीज का भी आप जरूर पूछोगे, ठीक है। बाकी उसका रिकॉर्ड कीपिंग, उसका जो सारी चीजें हैं वो भी पेशेंट सेफ्टी में आ जाती हैं, लेकिन जो हमने स्पेसिफिक चीजें डिस्कस की हैं वो तो हर पेशेंट की इंडिविजुअल होंगी। ये जो मैं बता रही हूँ पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन, ड्रग एलर्जी, ये तो कॉमन है विद ऑल पेशेंट्स। तो स्पेसिफिक जो है वो एटलीस्ट आपको स्पेसिफिक तो जरूर पता होनी चाहिए विद अ पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज एन अटेम्प्ट टू एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम सिनेरियो, कि हमने इसको एक फिक्स टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश की, एंड देन वी एनालाइज्ड इट कि इसको हम मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। दिस थिंग यू कैन एक्सरसाइज विद ईच अदर। आप इसको आप जहां जिस भी सेटअप में आप काम कर रहे हैं वहां पे आप अपनी कुलीग्स के पास बैठ के इसी तरह की कोई हिस्ट्री ली, आपका कुलीग आपसे पूछे, मतलब शी मे एक्ट एज एन एग्जामिनर, और इन पॉइंट्स के हिसाब से फिर आपने इसको एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सरसाइज ही है जो आपको ट्रेन करेगी। कि इसमें इंपॉर्टेंट फीचर ऑन हिस्ट्री, और इसमें एग्जामिनेशन में कोई और चीज जो आप जानना चाहें फॉर हर एवेल्युएशन फर्दर, और इन्वेस्टिगेशन तो ज़ाहिर है जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो आपने सिर्फ नाम ही बतानी है, उनकी जस्टिफिकेशन कैन बी आस्क्ड लेटर ऑन इफ देयर इज सम टाइम, कि उसमें वो फिर एविडेंस बेस्ड जस्टिफिकेशन होगी। बेसिकली वो फिर कहलाती है क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, यानी जो गाइडलाइन या जो भी आपकी जो है जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है उसके हिसाब से आपने जो ट्रीटमेंट एडवाइस की या आपने जो इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की है उसकी वजह ये है। सो दिस इज एन सेगमेंट जो कि इसमें पार्टली डिस्कस हो सकता है, ठीक है। हाँ चलें जी, अब क्वेश्चंस पे हम आ जाएं फॉर 10 मिनट्स मोर। मैम अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन
मैम इस केस में अगर हम स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की बात करें तो हमें एक तो ब्लड प्रेशर तो हमें चाहिए और बीएमआई उन्होंने बता दिया है, तो हमें इसमें पेलर भी तो देखना है और चेस्ट एग्जामिनेशन भी इसका होना ही चाहिए। तो वो आप बता सकती वो हो, वो सारा आप कुछ बता तो सकती हो, बिल्कुल वो देखो आप बता सकते हो क्विकली। आप जब बता रहे हो बीपी है, पेलर है, और उसके बाद आपने फंडोस्कोपी करनी है, ज्यादातर तो यही चीजें होती हैं। और उसके अलावा फिर आपने ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। मैम तो ये चीजें सेंसिस, आप जी डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी सेंसेशन पल्सेस। हाँ पल्सेस और ये सब डॉर्सल जो पेरिफेरल पल्सेस होती नहीं है, नहीं, वो सेंसेशंस देखो होती अगर तो बीपी आप पूछोगे कि बीपी, एग्जामिनर आपको बताएगा कि बीपी इसका, आपने पूछा बीपी इसका कितना है, जाहिर है बीपी का आपके जहन में आएगा बिकॉज दिस पेशेंट इज हैविंग IUGR। और पेलर का शी राइटली पॉइंटेड आउट के पेलर भी आप देखोगे, पेल अगर बहुत है तो आपको हीमोग्लोबिन वो तो पता चल ही जाएगी। तो बीपी का अगर वो कहते हैं हाई है तो फिर उसके बाद उसके उसके एग्जामिनेशन फाइंडिंग फिर और हो जाएंगी। उसमें अगर बीपी फर्स्ट किया वो बताएंगे 140/100 है इसका इस वक्त, तो 140/100 पे आप रिफ्लेक्सिस भी चेक करोगे। लेकिन क्विकली बताने में देखो, एक लफ्ज आपने पेरिफेरल रिफ्लेक्सिस आपने बोल दिया तो इसमें कितना, मेरा ख्याल है 1 सेकंड भी नहीं लगता। सो बेसिकली आप जब बिल्कुल फोकस्ड होके बात करते हैं तो आप फिर भी टू द पॉइंट ही रहते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। जब आप अनफोकस्ड हो जाते हैं एंड और बेसिकली आप फिर उस एक पर्टिकुलर सिनेरियो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे फिर आपका जो है वो टाइम फिर उसका कुछ पता ही नहीं चलता। मैडम ये जो मैम इंसुलिन मैम डोज होती पूछना है, मैं ये चाह रही इंसुलिन थी, की डोज एक बिफोर मिनट। सिजेरियन सेक्शन और बिफोर इंडक्शन कैसे ओमिट करनी है? इंडक्शन से क्या पहले चीज? हाफ। मैडम जो इंसुलिन की डोज, एक पेशेंट इंसुलिन पे है, हमने उसे हम्म इंड्यूस करना है, तो हम्म हमने उसकी डोज, इंसुलिन की डोज ओमिट करनी है या हाफ करनी है? मॉर्निंग वाली तो हम देखो, हाफ करें और हाँ वो इवनिंग वाली उसमें जो नाइट को इंडक्शन, क्या करना है? देखो जो अगर तो सेक्शन हो तो सेक्शन से पहले तो जाहिर है आप इवनिंग डोज देते हो, सुबह वाली आप ओमिट कर देते हो। जो इंडक्शन वाली है, अब इंडक्शन के लेबर के प्रोसेस में व्हाट हैपेंस टू द ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल, बेसिकली तो आपको पहले उस कंसेप्ट पे सोचना चाहिए कि इसमें अमूमन जो है वो क्योंकि इसमें डिस्टर्ब हो सकती है, वो इसलिए कि आपने पेशेंट को अक्सर पेशेंट एनपीओ भी होता है और पेशेंट का स्ट्रेस ऑफ लेबर भी होता है, मोर कॉर्टिसोल इज रिलीज्ड व्हिच कैन लीड टू कॉम्प्रोमाइज इन द कंट्रोल ऑफ द ब्लड शुगर लेवल। तो ये सारी चीजें हैं जो उसके ब्लड शुगर लेवल्स को ऊपर नीचे कर सकती हैं। तो उसमें आपने अगर सिर्फ इतना सा भी लफ्ज बोल दिया कि इंट्रापार्टम आई विल मैनेज द इंसुलिन डोज अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर लेवल्स एंड माय टारगेट वुड बी टू कीप द ब्लड शुगर लेवल्स बिटवीन 4 and 7 मिलीमोल, तो वो उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ऐसे तो देखो जब अगर आप पिलाने पे आते हो ना, तो अगर मैं सिर्फ इस एक सेंटेंस को ही पिलाने लग जाऊं तो आधा घंटा इसी पे ही गुजर जाए। तो बात ये नहीं है कि आपने इसको प्री इंडक्शन क्या करना है, फिर पोस्ट इंडक्शन क्या करना है, प्री इंडक्शन इसकी बाकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बिशप को असेस करना है, प्री इंडक्शन सीटीजी करनी है कि नहीं करनी, वो भी एक कंट्रोवर्शियल चीज है। इस जाहिर इस केस में तो IUGR में तो करोगी, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। सो यू कैन नॉट एंड अप इन ड्यू टाइम। अगर आप हर कंपोनेंट को अगर डिस्कस करने बैठ जाओगे तो आपका फिर टाइम तो सिर्फ एक कंपोनेंट पे ही गुजर जाएगा। यू हैव टू कंप्लीट इट इन ड्यू टाइम। And मैडम ये जो जीन्स है, don't forget that lastly you have to comment on the patient safety issue and sometimes on the evidence based practice as well. तो आपके पास सिर्फ वो जो 10-12 मिनट हैं उसमें आपने समझो दरिया को कूजे में समेटना। तो इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को अगर फर्ज किया, अब देखो अब इसमें ये है कि डायरेक्टेड क्वेश्चन, अब ये एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपसे, जरूरी नहीं कि आप ऐसे बोलते जाओ और वो गूंगों की तरह सुनते जाएं, ऐसा नहीं होता। अब हो सकता है कि एक फर्ज किया एक किसी एक पॉइंट पे एग्जामिनर ने कुछ और चीज पूछनी है अकॉर्डिंग टू द की, वो आपको पूछ सकते हैं कि अच्छा इंडक्शन से पहले इसकी इंसुलिन का क्या करोगे, तो उस वक्त आप जवाब दे दो। लेकिन अदरवाइज आप उसको एक कंप्लीट सेंटेंस में, यानी एक जो होता है ना, आपने इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बोलना होता है। कहीं पे हाँ जी मैम मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो इसका आयजा का जो केस है, आयजा का जो केस है मैम, ये जो हम मैनेजमेंट बता रहे हैं, जब हम मैनेजमेंट बताएंगे तो हम अकॉर्डिंग टू दिस पेशेंट बताएंगे ना। तो ये जो पेशेंट है इसका जो बेबी है ये 4 हफ्ते से स्टैटिक ग्रोथ में है। हाँ तो मैम हम इसका
डॉपलर वगैरह करा के इसको तो हमें टर्मिनेट कराना पड़ेगा ना इस बेबी को? तो जरूरी नहीं, वो डिपेंड करता है डॉपलर पे और डिपेंड करता है उसके ग्रोथ स्कैन पे। guideline- देखो आ गई IUGR आ गई, देखो, लेकिन अब वही बात है ना कि इसमें फिर आपने जो IUGR डिटेक्ट हो गया, अब इस पे डॉपलर फ्लो के हिसाब से जाते हो। गाइडलाइन कभी ये नहीं कहती कि आपने अगर 4 हफ्ते की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आ गई, डॉपलर फ्लो ठीक है तो आप टर्मिनेट करा दो एट 32 वीक्स। No, this will depend upon the termination of pregnancy will depend upon basically the Doppler flow studies and the onward growth scan. आपने पिछला अगर स्कैन अवेलेबल है तो ठीक है, वो आपको मिल गया, उसमें पता चल जाएगा कि ग्रोथ पैटर्न किस तरीके से चला बिटवीन द लास्ट स्कैन एंड द करंट स्कैन। और इसके अगर फर्ज किया पिछला कोई भी ग्रोथ स्कैन आपके पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपके पास एनॉमली स्कैन है और उस पर रूल आउट हो गई, डेटिंग स्कैन पे शी इज एट 32 वीक्स, आपने मतलब इसको सिंपलेस्ट सिनेरियो में हम ये करते हैं, और IUGR नाउ हैज बीन डिटेक्टेड एट दिस टाइम, तो आपने करंट अल्ट्रासाउंड करवाया, उस पे बायोमेट्री इज अकॉर्डिंग टू 28 वीक्स, और डॉपलर फ्लो उसका ठीक आ जाता है, लाइकर उसका ठीक आ जाता है, ऑन व्हाट बेसिस यू विल डिसाइड द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? You cannot. On the basis of severity of the placental insufficiency. No, placental insufficiency अगर होगी तो डॉपलर फ्लो स्टडी पे पता चल जाएगा हमें। Umbilical artery Doppler, venous Dopplers, middle cerebral artery Doppler 32 weeks पे इतना informative नहीं होता। So the umbilical artery and venous Doppler will be more informative. So if there are even जहाँ पे जो है reduced diastolic flow है, वहां पे भी हम उसको कुछ टाइम देते हैं मजीद। ये जरा IUGR की अब गाइडलाइन सारी पढ़ो, उसमें टर्मिनेशन सीधा आंसर उसका नहीं होता। इसमें अकॉर्डिंग टू द जो फीटल डॉपलर्स हैं उसके हिसाब से हमने आगे चलना होता है, इसलिए जो है वो आप इसको उसके हिसाब से ही चलाओगे। अगर एग्जामिनर आपको बताता है कि ठीक है इसका जो अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर है ठीक है, तो आप आगे चलो। अम्बिलाइकल ST रेशियो इसकी मार्केडली रेज्ड है, सपोज इट्स 4.5 या 5, देन यू गो फॉर द फर्दर वीनस डॉपलर फ्लो स्टडीज, और उसमें ST रेशियो वो तो उन्होंने रेज्ड एक बता दिया, यू विल स्पेसिफिकली आस्क फॉर द एंडास्टोलिक फ्लो। एंडास्टोलिक फ्लो रिड्यूस्ड है, आप डॉपलर करवाओ, सॉरी ये स्टीरॉइड कवर दो, और उसके बाद फिर आप बच्चे को निकाल लो। लेकिन अगर डॉपलर फ्लो उसके एंडास्टोलिक फ्लो इज रिवर्स्ड, तो रिवर्स में तो सेम डे आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके मुताबिक आपने डिसाइड करना है टाइम ऑफ डिलीवरी। फिर ये नहीं है कि आपने फौरन 4 हफ्ते की डिस्क्रिपेंसी है तो फौरन आप सिर्फ इसी बेस पे ही उसको डिलीवर कर दो। एनी अदर क्वेश्चन? मैडम ये जो बाइफेजिक रिजीम है उसमें हम अकॉर्डिंग टू वेट भी देते हैं और अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर भी देते हैं, तो इसमें वेट को हम देखो फीटल वेट इज वन ऑफ द मार्कर फॉर असेसिंग द ग्रोथ ऑफ द बेबी। Gestational age, fetal weight and biometry के all in composite हमें ये बताती हैं कि फीटल ग्रोथ जो है वो इसको सारा एक उस तरह से सम अप करके कंक्लूड किया जाता है ना कि इसमें जो फीटल ग्रोथ है वो किस हिसाब से चल रही है। तो हम अगर ये बाद दफा अगर ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी होता है तो इवन 34 वीक्स पे भी वो जो कि 2+ kg में होना चाहिए मिनिमम, तो वो हो सकता है 1.5 kg में हो, लेकिन अगर उसका बाकी सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज्ड है तो स्टिल वी हैव टू टेक आउट द बेबी। अदरवाइज हम कहते हैं 2 kg से बच्चा क्रॉस करे तो बहुत ज्यादा एक फेवरेबल उसमें सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। लेकिन सिर्फ ये इट्स नॉट द ओनली पैरामीटर, दो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर बट नॉट द ओनली इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। So you have to decide the time of delivery according to other parameters as well. ये सारी चीजें मिलो के आपने फिर उसको डिसाइड करना होता है। ये लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो हम के बेबी है वो तो हमें अल्ट्रासाउंड से ही पता चल जाता है, जो हम डॉपलर पे देख रहे होते हैं वो तो हम प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की सिवियरिटी देख रहे होते हैं ना कि एंडास्टोलिक फ्लो रिड्यूस्ड है, एब्सेंट है या रिवर्स्ड है, फिर इसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ना मोड ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी। बिल्कुल उसी पे करते हैं, क्योंकि देखो अगर अल्ट्रासाउंड ने बता दिया कि ये 28 वीक्स का बच्चा है एट 32 वीक्स, तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो हमें पता चल गई, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल भी आपको पता चल जाती है। अब जो सिमेट्रिकल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है वो ज्यादा जाती है इन लाइन विद सम क्रोमोसोमल एनोमलीज, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल डॉपलर एंड नॉर्मल AFI।
अब जो एसिमेट्रिकल है वो ज्यादा जाती है यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की, जो विद द ग्रोइंग बेबी थोड़ा सा लेटर जेस्टेशन में जाके एविडेंट होती है। अब ये जो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है उसको डिटरमिन करने का तरीका जो हमारे पास ज्यादा एक अवेलेबल तरीका है, दो देयर आर अदर प्लेसेंटल मार्कर्स फॉर दैट, लेकिन वो हम नॉर्मली नहीं करवा रहे होते, तो हम ज्यादातर तो रिलाई करते हैं ऑन द डॉपलर फ्लो स्टडीज। डॉपलर फ्लो स्टडीज में फिर हम जब जाते हैं तो हम उस पे फिर अपना डिसीजन लेते हैं कि डॉपलर फ्लो मार्केडली डिरेंज, तो फिर हमने डिसीजन ले लेना है उसको टर्मिनेट करने का, बिकॉज इन अ गुड नर्सरी द बेबी ऑफ 1 kg एंड ऑफ 32 वीक्स या 28 वीक्स पे जो बच्चा है वो सरवाइव कर सकता है। लेकिन वही बात है ना, अब जो देखो इसमें अब चीज ये है कि ये जो आपकी की के मुताबिक होगा, बेसिकली इसमें ज्यादातर गाइडलाइन रिलेटेड ही चीजें होती हैं। अब हमारी अपनी कंट्री की गाइडलाइन IUGR से रिलेटेड अभी तक नहीं है सो फार अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, लेकिन डायबिटीज से रिलेटेड तो है। तो जो हमारी कंट्रीज की हैं वो तो हमारी कंट्री की ही ज्यादा फेवरेबल समझी जाती हैं, जो मेरे ख्याल में वही होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से बनी हुई हैं और हमारी पॉपुलेशन के जो लिमिटेशंस हैं वो भी उसके हिसाब से ही वो डिवाइस की जाती हैं। बाकी जो कुछ अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, सॉरी बताइए मैडम, ये जो इसमें डायबिटीज में रिजीम्स होती हैं, जो बाइफेजिक रिजीम है उसमें हम इंसुलिन देते हैं अकॉर्डिंग टू वेट या अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर, तो इसमें हम वेट को हाफ करते हैं, वेट को डिवाइड करना है, या फिर जितना वेट होता है उसी को 0.6 0.7 0.7 0.8 बेसिकली तो बेसल बॉडी वेट तो आपको पता ही नहीं होता प्रेगनेंसी में, जो प्री प्रेगनेंसी वेट होता है, लेकिन जो पढ़े लिखे मरीज होते हैं उनको पता भी चल जाता है। बेसिकली जो आप वेट के हिसाब से करते हो वो वेट वो होना चाहिए जो प्री प्रेगनेंसी वेट था। अगर तो पेशेंट को पता है तो वो ठीक है, उसके हिसाब से आप दो, क्योंकि बाकी जो वेट गेन है वो तो प्लाज्मा फ्लूइड एक्सपेंशन, बच्चा जो ग्रो कर रहा है उसकी वजह से, फैट टिश्यू ज्यादा हो जाता है, वो उसकी वजह से भी काफी चीजें हो रही होती हैं, तो उसके हिसाब से दो। अगर नहीं है तो फिर जो करंट वेट है आप उसके हिसाब से दे सकते हो, लेकिन अमूमन चूंकि हमें अब ये इसमें हमेशा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज होते हैं टू इंसुलिन, कोई पेशेंट थोड़ी डोज पे भी ज्यादा रिस्पॉन्ड कर देता है, दैट इज बेसिकली उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करता है जो इंडिविजुअल है। तो इस वजह से जो है वो उस वजह से उसका रिस्पॉन्स बाद दफा फर्क हो जाता है। तो इसलिए हम जो टोटल डोज कैलकुलेट करते हैं टू बी ऑन सेफर साइड, हम उसको थोड़ा सा लो डोज से शुरू करते हैं, एंड डेफिनेटली अगर लो डोज से अगर नहीं इफेक्ट अचीव हुआ, यू कैन टाइट्रेट इट अकॉर्डिंग, आप इंक्रीज तो कर ही सकते हैं, रादर देन एक्सपोजिंग द पेशेंट टू द रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो मेरे ख्याल में ज्यादा सेफ इसमें चीज यही है, क्योंकि जाहिर है आपका चूंकि प्री प्रेगनेंसी वेट के हिसाब से, अगर कोई बिल्कुल अनएजुकेटेड बंदा है उसको नहीं पता उसका प्री प्रेगनेंसी कितना था, ज्यादातर पेशेंट्स को पता ही होता है जो पढ़े लिखे हैं, तो तब तो उसके हिसाब से करो, अगर नहीं पता तो फिर उसको थोड़ा सा लो डोज में ही दो। मैडम, अगर पेशेंट का वेट 70 kg है तो उसकी अगर हमें इंसुलिन सेट करनी है तो 70 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे या 70 का हाफ करके? बेसिकली फिर आप उसी वेट को फिर कर रहे होते हो, वो जो सारी रिजीम दी हुई है ना कि इतने यूनिट्स फर्स्ट में, इतने यूनिट सेकंड थर्ड ऑनवर्ड, ये सारा कुछ उसके हिसाब से ही फिर आपने करना होता है। मैडम, जो मेरा ये पेशेंट था IUGR वाला, अगर इसका डॉपलर नॉर्मल रहता है, बिल्कुल ठीक रहता है, तो फिर आप चल सकते हैं, फिर आप चल सकते हो, लेकिन आपने इसमें इसका ग्रोथ स्कैन जरूर करवाना है, क्योंकि ग्रोथ स्कैन पे भी आपको पता चलेगा। फर्ज किया एक टोटल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ है, यानी आपने अभी 32 वीक्स पे है, आपने 2 हफ्ते बाद इसका ग्रोथ स्कैन करवाया, स्टिल द सेम रिपोर्ट, हालांकि उसको ग्रो करना चाहिए, वीक टू वीक उसमें इंक्रीज होता है बीपीडी में भी, चाहे अगर वो स्लो रेट पे ग्रो कर रहा है इट्स ओके, लेकिन अगर बिल्कुल टोटल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ है तो देन यू हैव टू टेक डिसीजन फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मैम, इसमें मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगी? मैम, इन्होंने गाइडलाइन में वीकली दिया हुआ है मैम, ये ग्रोथ स्कैन जो दिया हुआ है वीकली दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। देखो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो जिनमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ना हो, वहां पे आप वीकली कर रहे होते हो, क्योंकि बाद में बड़े फास्ट रेट पे मैक्रोसोमिया डेवलप हो रहा होता है, लेकिन जहां पे IUGR है वहां पे अगर आप वीकली करवाते हो, अब वीकली करवाने का डिसीजन भी आपने इसके बेसलाइन अल्ट्रासाउंड पे डिसाइड करना है,
यानी उसके डॉपलर फ्लो पे डिसाइड करना है। डॉपलर फ्लो फर्स्ट किया, उसमें एंड डायस्टोलिक फ्लो इज ओके, बट ओवरऑल डॉपलर फ्लो हैज बीन इंक्रीज, यानी फर्स्ट किया इसका 3.5 है, विच इज बॉर्डर लाइन इंक्रीज। तो उसमें आप कम से कम 2 हफ्ते बाद कराओगे तो आपको कि डिफरेंस ऑफ ग्रोथ पता चलेगा। 1 हफ्ते बाद तो वो वैसे ही उतना तो हो सकता है उतना ही आ जाए। तो इस वजह से 3 हफ्ते नहीं लिखा जी, गाइडलाइन में उसने लिखा है कि वीकली स्कैन कराएंगे आप एसी और एस्टिमेटेड फीटल वेट को देखने के लिए। अगर आपने डिलीवरी करवानी है, मतलब बच्चे की ग्रोथ बहुत कम है और आप डिलीवर करना चाहते हैं, तो इन ऑर्डर टू चेक हर वेट, वो आप इवन इन केस ऑफ, देखो अगर तो इफ यू आर श्योर कि गाइडलाइन में इवन IUGR में भी उन्होंने कहा हुआ है कि वीकली आपने करवाना, देन गो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। मैंने वीकली उसने ये नहीं कहा कि इसमें मैंने ये बताया हुआ है ना कि आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस पे नहीं जाओगे, आपने अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ही जाना है, क्योंकि जो IUGR और मैक्रोसोमिया का ग्रोथ स्कैन है उसका थोड़ा सा फर्क होती है, सिग्निफिकेंट। अब जो IUGR है, IUGR में आप अगर, मेरा जो अपना एक व्यू पॉइंट है और जो मुझे पता भी है गाइडलाइन के हिसाब से, जो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है, वो ये कि आप 1 हफ्ते के बाद जब ग्रोथ स्कैन करवाते हो तो उस पे आपको इतना बहुत डिफरेंस पता नहीं चलता। यानी अगर BPD का इंक्रीज होना है बाय 2 मिलीमीटर पर वीक, तो वो 2 मिलीमीटर बहुत इजीली मिस हो सकता है ऑन असेसमेंट ऑफ द फीटल बायोमेट्री बाय रिपीट स्कैन अगर आपने। लेकिन फर्ज किया ये जो है इसमें डॉपलर फ्लो में कोई मसला है, तो देन बाय ऑल मींस गो आफ्टर फॉर वीकली, क्योंकि उसमें तो डॉपलर फ्लो आपने करवाना ही है हफ्ते बाद, तो उसी वक्त आप ग्रोथ स्कैन भी साथ कर ऑर्डर कर सकते हो। तो इस वजह से सिनेरियो टू सिनेरियो आपकी जो गाइडलाइन, अब गाइडलाइन में ये नहीं होता कि एक सिर्फ एक ही चीज है जो हर पेशेंट पे एप्लीकेबल होगी इन द सेम इंटेंसिटी एंड इन द सेम मैनर। हर पेशेंट की के हिसाब से गाइडलाइन उसके हिसाब से फिर चलती है, यानी गाइडलाइन इस हिसाब से फर्क होगी डॉपलर फ्लो नॉर्मल, गाइडलाइन उस हिसाब से फर्क होगी जिसमें डॉपलर फ्लो में मसला आ गया। ये हमेशा चीजें गाइडलाइन में बताई होती हैं कि ये होगा तो ये करो, ये होगा तो ये करो, आपने बस उस हिसाब से ही चलना है। मैडम ग्रोथ एक्सक्यूज मी मैडम, ये देखिए ये जो पेशेंट, हाँ जी मैडम ग्रोथ स्कैन उसने 3 वीकली ही दिया है गाइडलाइन में कि 3 वीक्स के बाद ग्रोथ स्कैन करना है, और वीकली आप मेरी भी यही अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए मुझे जरा थोड़ा सा इसमें हैरत हो रही थी कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटसेस में 1 वीकली स्कैन बेसिकली नहीं होता। जो डायबिटिक प्रेगनेंसी होती है जिनमें मैक्रोसोमिया का चांस होता है, वो हमारी अपनी SOGP की गाइडलाइन के मुताबिक वीकली है, उसमें तो चलो वीकली आप करवा सकते हो। लेकिन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड में पता ही नहीं चलता कि उसमें अगर 2 मिलीमीटर का डिफरेंस आना है पर वीक, तो वो 2 मिलीमीटर आप आसानी से दाएं बाएं कर सकते हो। सो यू कैन लेबल इट एज द सेम ग्रोथ या स्टैटिक ग्रोथ, उस पर आपका गलत डिसीजन हो सकता है। तो इस वजह से यू हैव टू कंफर्म इट कि ये वीकली नहीं होता, ये 2 वीकली होता है, बट डेफिनेटली 2 वीक्स भी आप करवा सकते हो। 3 वीक्स विल बी अ लॉन्ग टाइम पीरियड, आप 2 वीक्स के बाद भी करवाओ तो ये एप्लीकेबल है, लेकिन 1 वीकली का कोई इतना बहुत फर्क नहीं आता फिर। मैम इंसुलिन देते हुए आपने कैसे में ये बताया जो था पेशेंट आज हम जरा इस पे फिनिश कर दें आज इस वक्त, बस एक लास्ट क्वेश्चन मैम ऑलवेज बी हैप्पी, आमीन, अल्लाह हाफिज। सिर्फ ये बताइए कि हम पेशेंट को जो टारगेट लेवल्स आपने जो रेंजेस में बताया ना, तो मैम वो किस तरह, जैसे 95 अगर पेशेंट, दोबारा से क्वेश्चन करें मैम जो आपने रेंजेस बताए ना, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी के लिए हम जो पेशेंट को होम टारगेट लेवल्स देते हैं ब्लड शुगर के, देखो अगर जैसे फास्टिंग का जो लेवल है, अगर हम उसको कहते हैं 95 लेस देन 9, अब उसकी रेंज ये है कि कम से कम उसको 80 और 95 के दरमियान में हो। अब ये तो नहीं हो सकता कि हर रोज उसकी 95 ही आए, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ब्लड शुगर लेवल जितने फ्लक्चुएट करते हैं, और खासतौर पे डायबिटिक्स में भी थोड़ा सा एक्टिविटी ज्यादा होगी तो नीचे लेवल चले जाएंगे, एक्टिविटी कम हुई तो ज्यादा लेवल ऊपर चले जाएंगे, डाइट में कोई गड़बड़ होगी तो ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि 95 से वो 90 हो जाएगी तो वो इंसुलिन कम कर देगी, नहीं, आपको रेंज बतानी होती है। अच्छा मैम एक लास्ट क्वेश्चन, आपने ना इंसुलिन की डोज कैलकुलेट करनी लास्ट लेक्चर में, इंसुलिन की डोज जब कैलकुलेट करते हैं आपने कहा था कि हमने बॉडी से हमने उसको जो भी डोज आएगी ना, हमने उसको 2 से डिवाइड करना है। तो मैम वो किस वाले रेजिम में हमने उसको डिवाइड करना है, क्योंकि आपने कहा था कि हाफ जो है ना वो ऑलरेडी हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है,
तो हमने किस रिजीम को फॉलो करते हुए लेकिन इसको बॉडी decide कितना प्रोड्यूस कर रही है ये हमें नहीं पता होता, इसीलिए जो है हम उसको बेसिकली बेजल और उसमें बोलस के हिसाब से, बेजल जो है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस जो कर रही होती है, ये वो चीज होती है बेजल जो हमारी बॉडी ने पूरे दिन में बनाना होता है। एंड ऑन एवरेज हर एक की बॉडी जो जिसका नॉर्मल पेंक्रिया जो है वो इंसुलिन बना रहा होता है, वो कम से कम 20 यूनिट्स बना रहा होता है रोज का बेजल इंसुलिन हमारा पेंक्रिया। तो मिनिमम इसीलिए कहते हैं कि मिनिमम इंसुलिन जब आप देते हो तो वो कम से कम 18 से 20 तो होनी चाहिए। एक ऐसा पेशेंट जो ग्रॉसली वो है जो ओवर जिसकी डायबिटीज है, तो उसको कम, अगर इससे कम है तो हो सकता है कि वो डाइट और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक के साथ ही कंट्रोल हो जाए, अनलेस कि उसमें कोई और कॉम्प्लिकेशन आ गई है। ठीक है, अब इसके साथ हम एंड करें अब आज का सेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, जज़ाकल्लाह मैम, अल्लाह हाफिज मैम। ऑलवेज बी हैप्पी, आमीन।